میری پاکستانی کمیونٹی سے درخواست ہے کہ پلیز ویکسینیشن کروائیں۔ پہلے آپ سمجھتے تھے کہ کرونا کا ڈیزیز بھی نہیں ہے، اب اتنی اموات کے بعد اور ہمارے ہمسایہ ملک میں جو حالت ہے اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک مرض ہے۔ پلیز ویکسین لگوائیں، جو ویکسین مل جائے لگوا لیں۔ کوئی اس میں یہ جو تھوڑی بہت باتیں آئی تھیں یہ سب بہت مائنر کیسز میں ہیں۔ ویکسین کروانے سے نہ صرف آپ اس مرض کے خلاف بچیں گے بلکہ آپ کو ٹریول میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 7 جون 2021 ہے اور پیر کا روز ہے۔ پیر کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق یورپی یونین سے ہے کہ یورپی یونین کے 8 ممالک میں کووڈ-19 ڈیجیٹل سفری دستاویزات کا اجرا کر دیا گیا۔ 1 جولائی سے یورپی یونین کے تمام ممالک کے شہریوں کو رکن ممالک میں غیر ضروری سفر کی بھی اجازت ہوگی، بشرطے کہ انہوں نے کووڈ کے خلاف ویکسین کی دونوں خوراکوں کے انجیکشن لگوا لیے ہوں۔ ان ممالک میں بیلجیم، چیک ریپبلک، ڈنمارک، جرمنی، گریس، کروشیا اور پولینڈ شامل ہیں۔ وہ مسافر اور ٹورسٹ جو یہ ثابت کر دیں کہ انہیں فائزر، موڈرنا، اسٹرازینیکا اور جانسن ویکسین اور چینی سونو فارم اور سیونک کے مکمل شیڈول کے ساتھ حفاظتی ٹیکے لگ چکے ہیں، آج پیر سے اسپین میں داخل ہو سکیں گے اور انہیں کسی روک ٹوک کا وہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سیاحوں کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کے پاس ویکسین کا پروف 14 دن پہلے کا ہو۔ برازیل، انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے مسافروں پر اسپین داخلے کی فی الحال پابندی ہے۔ بارسلونا میں کاتالان پولیس موسس اسکواڈرا نے پرتشدد ڈکیتیوں کے الزام میں 21 افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ چور اختتام ہفتہ پر شہر میں ڈکیتیوں اور راہزنی کی وارداتیں کرتے تھے۔ یہ چور پاسیو ماریتیمو، بارسلونیتا، پاسیو دے ازابل، سیگونا، کائے نو دے لا رمبلا، مونجوئی اور شامپلے کے علاقوں میں وارداتیں کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان کی عمریں 21 اور 26 سال کے درمیان ہیں۔ کاتالونیا میں 39% کاتالانوں کو ویکسین کا ایک انجیکشن لگ چکا ہے۔ 27 دسمبر سے لے کر اب تک 30,26,949 کاتالانوں کو ویکسین کی ایک خوراک لگ چکی ہے۔ کاتالونیا میں 17,78,586 افراد کو ویکسین کی دونوں خوراکیں لگ چکی ہیں۔ بارسلونا میں 6,70,000 افراد کو ویکسین لگ چکی ہے، جو آبادی کا 40.6% بنتے ہیں۔ اسپین کے علاقے الیکانتے کے شہر پالما کے ایئرپورٹ پر مسافر نے ایک جہاز کی فلائٹ کو لیٹ کرا دیا کیونکہ اس نے عملے کی جانب سے مطلع کرنے کے باوجود اپنا فون سوئچ آف نہیں کیا تھا اور ایسا کرنے سے مسلسل انکاری تھا۔ مسافر کی اس تکرار کی وجہ سے پائلٹ کو ٹیک آف منسوخ کرنے پر مجبور کر دیا اور سلاٹ سے محروم کر دیا گیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں پرواز 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہوئی۔ بارسلونا کے نواحی علاقے باربرا دے کونکا میں پولیس نے ایک 18 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا جس پر 80 سالہ خاتون سے جنسی زیادتی کا الزام ہے۔ یہ واقعہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات کو پیش آیا۔ پولیس نے کیس کی مزید تفصیلات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کے علاوہ بارسلونا کے ساحل پر لوکل پولیس گواردیا اربانا نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے ساحل سمندر پر ایک لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ میڈرڈ کے کائے گونسو دے یما میں واقع گھر میں 17 سال سے کم عمر کے نوجوان نے تقریباً رات 3 بجے چھری سے حملہ کر کے ماں اور باپ کو زخمی کر دیا۔ نوعمر ملزم نے چھری کے وار سے پہلے 48 سالہ ماں کا چہرہ زخمی کیا اور پھر باپ کے سینے پر چھری کے 3 وار کیے جس سے اس کو 5 سینٹی میٹر کے زخم آئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اسپین کے جزیرے ابیسا پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 اٹالین باشندے زخمی ہو گئے جن میں سے ایک کی حالت نازک بیان کی جاتی ہے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ ابیسا کے ایک گاؤں میں ہونے والی نجی پارٹی میں پیش آیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے امیر صنعتی ممالک سے کہا ہے کہ وہ سال 2022 کے آخر تک
दुनिया की तमाम आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी उठाएं। लंदन में जॉनसन का कहना था कि G7 ग्रुप को अज़म करना चाहिए कि वो कोरोना वायरस से तबाहकारी जैसे हालात दोबारा कभी पैदा नहीं होने देंगे। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में मार्च में एक पाकिस्तानी उबर ड्राइवर से गाड़ी छीनने की कोशिश करने वाली 15 साल अमेरिकी लड़की को इसकी उम्र 21 वर्ष होने तक कैद में रखने की सजा सुना दी गई है। पुलिस के मुताबिक कार छीनने की कोशिश के दौरान 66 साल मोहम्मद अनवर पर इसने गन से हमला किया और बाद अज़ां वो हलाक हो गए। पुलिस का कहना था कि मोहम्मद अनवर को करीब वाक़े एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो वहां पर जानबर ना हो सके। जर्मनी में कैथोलिक कलीसिया के अरकान के खिलाफ कानूनी मुकदमात की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि जर्मन हुकूमत गिरजाघरों में पनाह लेने वाले पनाह गज़ीनों के खिलाफ सख्त और मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। जर्मन गिरजाघरों ने कई दहाइयों के दौरान सैकड़ों महाजरीन को पनाह दी। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का कहना है कि कनाडा में मुकामी आबादी के बच्चों के लिए कायम एक साबिक कैथोलिक स्कूल के हाथे से 215 बच्चों की बाकियात मिलने पर वो तकलीफ में हैं। उन्होंने इस वाक़े पर बराह रास्त माजरत से, जिसकी तवक्को ज़्यादातर कैनेडियन कर रहे थे, एतराज़ किया। 18 साल पाकिस्तानी नज़ाद अत्तालवी लड़की सुमन अब्बास के चचा दानिश हसनैन और वालदा नाजिया शाहीन की चैटिंग मंजर आम पर आ गई, जिसमें चाचा लिखता है कि हमने काम बखूबी सर अंजाम दे दिया है। जवाबन सुमन अब्बास की मां कहती है कि इस वक्त के सिवा कोई चाराकार नहीं था, और वॉइस मैसेज में सुमन की वालदा इसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी बात करती है। पुलिस के ज़राए के मुताबिक इस चैटिंग में साफ लग रहा है कि जब सुमन को कत्ल कर दिया गया तो चचा ने उसकी मां को इत्तला दी। कत्ल की वारदात के बाद सुमन के वालिद शब्बीर अब्बास और वालदा नाजिया शाहीन पाकिस्तान फरार हो चुके हैं। याद रहे कि 18 साल पाकिस्तानी नज़ाद अतालवी लड़की सुमन अब्बास इटली में गुज़िश्ता एक माह से लापता है। अतालवी पुलिस के मुताबिक सुमन के वालिदैन इसकी शादी जबरी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम इसके कज़न के साथ करना चाहते थे। पुलिस को खदशा है कि सुमन को कत्ल करके इसकी लाश छुपा दी गई है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। पाकिस्तान में 2 एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के माबैन तसादुम में 40 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो गए और 100 अफराद ज़ख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक इस तसादम के बाद अमदादी कारकुन और करीबी देहात के रहने वाले दोनों गाड़ियों की तबाहशुदा बोगियों से हलाक शुदगान की लाशों और ज़ख्मियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह तसादुम आज सुबह तलुए आफ्ताब से पहले सुबह सिंध के ज़िला घोटकी में हुआ। घोटकी पुलिस के एहलकार ने बताया कि यह तसादुम मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस नामी मुसाफिर ट्रेनों के माबैन हुआ। दुनिया भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4 लाख से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 9,800 से ज़ायद कोरोना मरीज मौत के मुंह में पहुंच गए हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 17,37,64,886 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 37,37,538 हो गई हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हवाई सफ़र के दौरान कोई मुसाफिर अपनी नशिस्त पर सो जाए और जब उसकी आंख खुले तो उस वक्त उसे मालूम हो कि वो तो अपनी मंजिल से 1200 मील दूर जा पहुंचा है। एक खातून के साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिसको मैनचेस्टर से आयरलैंड के दारुल हुकूमत बेलफास्ट जाना था, मगर वो जिब्राल्टर पहुंच गई। गेमा गार्गियन नामी खातून ईजी जेट की परवाज़ में बगैर किसी मसले के सवार हो गई और इसे लगा कि वो दुरुस्त गेट्स में दाखिल हुई है। 25 साल खातून ने बताया कि TC स्क्रीन ने हमें बताया था कि परवाज़ गेट पर नहीं, तो मुझे ख्याल ही नहीं हुआ कि मैं गलत परवाज़ पर सवार हो रही हूँ और मुझे नतीजतन बेलफास्ट की बजाय जिब्राल्टर पहुँचना पड़ गया। फिलिपाइन में रेस्टोरेंट ने ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली खातून को चिकन ब्रोस्ट की जगह ब्रोस्टोलिया भेज दिया। अक्सर ममालिक और शहरों के रेस्टोरेंट को गधे और मेंढक का गोश्त
को ग्राहकों को खिलाते देखा है, लेकिन फिलिपाइन में एक रेस्टोरेंट ने अपनी सार को ब्रोस मुर्गी की जगह तौलिया भेज दिया। जी हां, फिलिपाइन की खातून एलेक प्रेज ने रेस्टोरेंट का ब्रोस चिकन का ऑनलाइन ऑर्डर दिया, जो थोड़ी देर बाद राइडर ने खातून तक पहुंचा दिया, मगर जब देखा तो वो मुर्गी की जगह तौलिया था। बार्सिलोना में वॉलीबॉल टूर्नामेंट गुज्जर क्लब ने वडाइज क्लब को शिकस्त देकर जीत लिया और ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल मैच बहुत ही कांटेदार था। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल ऑफ बार्सिलोना अली इमरान चौधरी थे, जबकि दीगर मेहमानों में चौधरी इम्तियाज़ आकिया, चौधरी इम्तियाज़ लोरा, मोहम्मद इकबाल चौधरी, चौधरी सिकंदर हयात गोंदल, चौधरी सिब्ते हसन और दीगर शामिल थे। टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी अजीज अहमद अमरा ने ऑर्गेनाइजर कमेटी के चौधरी शहजाद अकरम, चौधरी बशारत और हाफिज अब्दुल रज़ाक सादक को टूर्नामेंट के बेहतरीन इंतजाम करने पर खराज तहसीन पेश किया। टूर्नामेंट के अख्ताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एजाज़ी शील्ड भी दी गई। टूर्नामेंट के कवरेज के लिए मीडिया के अरकान की बहुत बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। आखिर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि कोरोना वायरस के बाद खेलों के मैदानों की रौनकें बहाल हो गई हैं और लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को कोरोना से बचने के हिफाजती इक़दाम ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है बीमारी का असर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश हुई है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है और हम इससे गेज करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के खबरनामे के तक इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।